ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਭਰਾ। ਜੈਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੋ? ਜੈਮ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਚਲੋ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜरूर जरूर आमीन ब्रदर जी। आमीन। आमीन। खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। सामन रूअर बदन, सामन रूअर बदन, प्रस्तीश को करने लाया हूँ। टूटा सामन रूअर बदन, टूटा सामन रूअर बदन, प्रस्तीश को करने लाया हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। है तख्ते नशी है मेरे मसीह, है तख्ते नशी है मेरे मसीह। करता हूँ तेरी मजीदो तमी, है तख्ते मसीह है मेरे मसीह। करता हूँ तेरी मजीदो तमी, मस्किनों का आका है तू, मस्किनों का आका है तू। शुक्राना दिल से लाया होसना, होसना। तू कमाल है, मिसाल है, तू कमाल है, मिसाल है। औड़े हुए कैसा जला है, कि कलम से लिखे हुए, कलम से लिखे हुए, लबों पे तेरा नाम लाया। होसना, भी नहीं मुझ में कोई, भी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। सामन रूअर बदन, का सामन रूअर बदन, प्रस्तीश को करने लाया हूँ। हालेलुया होसना, होसना। आमीन आमीन आमीन। ब्रदर जी खुदा बरकत दे। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और जो गीत भी गाया प्रभु ਦਾ तो लाजमी है कि ये पवित्र आत्मा ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। तो प्रभु आशीष देवे भाई जोशुआ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰੂਥ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਤਮਿਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।
ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਆਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਉਧਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਆਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਜੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮੌਜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਗਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਭੈਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ, ਕੀ ਆਸਮਾਨ, ਕੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਕੀ ਜਾਨਵਰ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਮੌਜੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਬੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡੀਪਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। माफ़ करना मैं पंजाबी बोल पे। तो हमने देखा पूरे कलाम में प्रभु ने अपने लोगों के ऊपर बहुत फजल किया, बहुत दया की, बहुत कृपा की, और अपनी कौम को उसने बड़े बड़े मौजे चमत्कार दिखाए। और उसके बाद जो सारे इज़राइलियों का ये फ़र्ज़ बन जाता था, एक जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने प्रभु परमेश्वर से ईमानदार रहें। और प्रभु भी क्या चाहता था उनसे, इज़राइलियों से क्या उम्मीद रखता था, प्रभु उनसे उसके बदले क्या मांगता था। जो प्रभु ने उन्हें गुलामी से बाहर निकाला, समुंदर को दो फाड़ किया, प्रभु ने वो उसके बदले में क्या मांगता था। प्रभु यही मांगता था कि उसके लोग उसके साथ ईमानदारी से रहें, ईमानदारी से बने रहें। लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी उसके बावजूद भी वो प्रभु को
हर्ट करते रहे, दिल दुखाते रहे। अब देखिए यहाँ हम इजरायली नहीं हैं। अब यहाँ पर जो हम इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं, यहाँ आप और मैं हैं, और हम जो हैं अन्य जाति के हैं। हम अलग अलग धर्मों से, अलग अलग ईमान विश्वासों से, अलग अलग दिशाओं से निकले हुए लोग हैं। और हम खुद नहीं निकले थे, हमें निकालने वाला प्रभु था। हम अपने आप नहीं निकले, ना हमारे पास इतनी समझ थी, ना इतना ज्ञान था कि हम खुद निकलते। ये सारा कुछ अनुग्रह जो किया है ये प्रभु परमेश्वर ने किया, और प्रभु ने हमें निकाला। क्योंकि हमने कल भी ये जाना था कि पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। वो हमें भेड़े कहता है कि हम वो भेड़े थी जो अपनी अपनी दिशाओं में गुम हो गई थी। हम में से हर एक ने अपना अपना रास्ता ले लिया था। हम सब अपने अपने रास्तों पर चले हुए थे और भटके हुए भेड़ों के समान थे कि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह जो आया, उसने हमको उन सारी गलत दिशाओं से टटोला, ढूंढ ढूंढ के एक एक को हम सबको वापस कहाँ लेके आया? बाड़े में। और जिस बाड़े में लेके आया है वो एक बाड़ा है, वो एक ही ईमान है, उसका एक ही विश्वास है, उसका एक ही प्रभु है। हम सब एक ही बाड़े में हैं, अब एक ही प्लेटफॉर्म में हैं। तो अब इजराइलियों ने रास्ते में परमेश्वर को बहुत हर्ट किया, बहुत शोकित किया। और हम देखते हैं कि इजराइलियों के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। इजराइली जो पहुंच भी गए इजराइल में, उसके बाद भी हम देखते हैं ये सिलसिला थम नहीं रहा। उसके बाद भी हम देखते हैं कि इजरायली बार बार गलती गुनाह कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर को हर्ट कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर जब ये इजराइल पहुंचते हैं तो वहाँ पर जब पहले इतिहास में हम जाते हैं तो इनको इनको क्या होता है कि ये मांगते हैं, कहते जैसा अन्य जातियों का होता है। पहला सैमुएल 8 में, ये पहला सैमुएल 8 में है। अब यहाँ पर इजराइलियों ने अन्य जातियों को देखकर एक परमेश्वर के आगे मांग रख दी कि जैसा अन्य जातियों का एक राजा होता है, हमारा भी एक राजा होना चाहिए। अब देखिए, ये पहली बार मांग उठी है कि हमारा भी एक राजा हो जैसे अन्य जातियों का होता है। आप इससे पहले देखें, इससे पहले ऐसी मांग नहीं उठी। और बाकी सभी अन्य जातियों का राजा होता था जो राज्य करता था अपने अपने लोगों पर सारे संसार में सिर्फ एक ऐसी कौम थी जिसका कोई भी इंसान राजा नहीं। इन्हें राजे की जरूरत थी, किसी इंसानी राजे की, क्योंकि इजराइलियों का राजा जो होता था वो यहोवा होता था, वो परमेश्वर होता था राजा इनका। और परमेश्वर ही इनको चलाता था, संभालता था। अब परमेश्वर राजा था और इजराइली परमेश्वर की प्रजा थे। और परमेश्वर एक जिम्मेदार राजे होने के नाते अपनी इजराइली कौम को बहुत ही बचा के रखता था, इजराइली कौम की रक्षा करता था। बल्कि इतना तो दुनियावी राजा भी अपनी प्रजा को नहीं संभालता था जितना परमेश्वर यहोवा इजराइली अपनी प्रजा को संभालता था। एक दुनियावी राजा भी अपनी प्रजा का इतना बचाव नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता जितना परमेश्वर संभालता था। कोई दुनियावी राजा देखिए 10 मुसीबतें नहीं भेज सकता किसी दुश्मन राज्य के ऊपर। कोई राजा, दुनियावी राजा समुद्र को 2 फाड़ नहीं कर सकता। कोई राजा आसमान से मन्ना नहीं फेंक सकता। कोई राजा भी रात को खंबा बन के आता, दिन को बादल बन के नहीं चल सकता। ये दुनियावी राजा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन देखिए ये सब कौन कर सकता था? परमेश्वर कर सकता था। और इसलिए अगर सारे संसार में देखा जाए कि सारे संसार में
सबसे अच्छा राजा किसके पास था? तो इजराइलियों के पास था। परमेश्वर जो था, यहोवा जो था, वो इजराइलियों का राजा था। और जितनी केयर, जितनी संभाल, सुरक्षा परमेश्वर कर सकता है, उतनी कोई भी नहीं कर सकता। इस बात पे हम सभी सहमत हैं और आमीन कहते हैं कि परमेश्वर जिसका राजा होता है वो प्रजा सबसे सुरक्षित है। फिर देखिए इनको क्या हुआ कि पहले शमूएल 8 में इन्होंने ये मांग रख दी कि जैसा अन्य जातियों का राजा होता है, हमारा भी एक राजा होना चाहिए। अब ये देखिए ये भी एक मांग है, एक इनकी प्रार्थना है परमेश्वर से कि हमें राजा दे। अब जरूरी नहीं होता कि जो भी मांगते हैं वो हमारी जो मांग है वो बिल्कुल, यहाँ पर इजराइलियों की मांग जो है वो गलत है बिल्कुल। इसलिए मांगने से पहले पता होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या ये मेरे लिए ठीक है या परमेश्वर के लिए ठीक है जो मैं मांग रहा हूँ। पर इजराइलियों ने ये मांग परमेश्वर के आगे रख दी कि हमें राजा चाहिए। कहता है जैसे अन्य जातियों का होता है। अब देखिए कि इस मांग से परमेश्वर खुश नहीं हुआ। हमारी मांगे अगर सही ना हुई, प्रभु के मुताबिक नहीं हुई प्रार्थनाएं, तो परमेश्वर उससे हम खुश नहीं होगा। अगर हमारी प्रार्थना बिल्कुल परमेश्वर के कलाम के मुताबिक है तो परमेश्वर जरूर देगा। वो अपने मांगने वालों को जरूर देता है जब जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। इसीलिए हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं क्योंकि हम अपनी ऐश प्रस्ती में उड़ाना चाहते हैं। इस्राएलियों ने यहाँ पे राजा मांगा, पर और जो उसका नबी था उसे पता था कि ये बिल्कुल गलत मांग है। एक नबी को पता होता है जो भी लोग मांग रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। तो शमूएल ने ही ये बोल दिया कि ये तुम गलत मांग रहे हो। तो शमूएल भी हर्ट था। लेकिन आप अगर उस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इजराइलियों ने जिद नहीं छोड़ी। इजराइलियों ने एक तो जो मांग रहे हैं चीज वो गलत मांग रहे हैं, और परमेश्वर के समझाने पर ना देने पर भी जिद नहीं छोड़ रहे हैं कि हमें तो ये चाहिए चाहिए। अब देखिए कई बार हम इंसान ऐसे हो जाते हैं, कई बार हम ज़्यादातर ऐसे हो जाते हैं कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो हम दिन रात प्रभु के आगे प्रार्थना में मांगते हैं कि प्रभु मुझे ये दे ये दे ये दे। और चाहे प्रभु उसमें खुश नहीं है, हमें जवाब नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम लगातार दबाव बनाते रहते हैं। तो लगातार दबाव बनाते रहते हैं तो परमेश्वर जो है उसे जो है हर्ट होता है। तो प्रभु परमेश्वर ने उसको इजराइलियों को चेतावनी दी। आगे आपको मेरी आवाज़ साफ नहीं आती तो दोबारा से आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको आवाज़ साफ नहीं आ रही। जी जी ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, शायद अब फर्क पड़े। जी भाई आवाज कट कट के आ रही भाजी। अच्छा अच्छा, कट के तो नहीं आनी चाहिए। अब कैसे है भाई? अब ठीक आ रही है? ठीक है भाजी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा अच्छा विच कट्टी जांदी भाजी। अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल हम मेरा तो वाईफाई ठीक है वैसे तो। क्या? अच्छा नहीं वाइवर जी ब्लिंक कर रहा है भाजी, अच्छा अच्छा, मैं ब्लिंक कर समझ रहे गया हैं। समझ गया समझ गया। अच्छा शायद थोड़ा वेट कर लें, मेरे हिसाब से तो अब तो सही आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आवाज़ में। हाँ जी हूँ ठीक है भाजी, हूँ ठीक है। ओके ठीक है भाजी ठीक है। अच्छा, शायद मैं डायरेक्शन चेंज करके देखता ओके हूँ, भाजी। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मैं डायरेक्शन चेंज करके देखता हूँ भाई। हाँ जी भाजी तो हम ठीक है भाजी। पहला शमूएल 8 में पढ़ रहे थे कि इजराइलियों ने इस बात पे जिद पे अड़ गए कि हमें अन्य जातियों की तरह राजा चाहिए।
तो परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। तो अब हम जो नए अन्य जातियों के नए नियम के लोग हैं, जो प्रभु के विश्वासी हैं, हमें भी ये गलती नहीं दोहरानी। हमें एक तो पता होना चाहिए कि हम मांग क्या रहे हैं, और अगर हम प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु नहीं दे रहा, तो हमें उस चीज़ को बार बार परमेश्वर से दबाव नहीं डालना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर मुझे ये चीज़ दे। और ख़ास करके जब हम संसारिक चीज़ों को देखते हैं, संसारिक वस्तुओं को देखते हैं, और हमारे में दिल में भी अगर वो लालच आ जाता है कि प्रभु परमेश्वर उनके पास ये है, पड़ोसियों के पास ये है, हमारे रिश्तेदारों के पास ये है, मुझे भी ये चाहिए, तो ये वाला जो मामला है फिर इधर जाके जुड़ जाएगा कि हमें ऐसा काम नहीं करना कि जैसा इजराइलियों ने कहा कि जैसा अन्य जातियों का राजा होता है, हमारा भी एक राजा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये गलती करके इन्होंने अन्य जातियों को देखकर परमेश्वर से ये मांग रखी, हमें राजा चाहिए। हमें अन्य जातियों को देखकर नहीं किसी चीज़ के लिए परमेश्वर से दबाव बनाना चाहिए कि परमेश्वर हमें ये दे। पहली बात तो, जबकि इजराइलियों का राजा कौन था? परमेश्वर था। अब जिसका राजा परमेश्वर हो वो कौम मुबारक है, ब्रदर एंड सिस्टर, वो मुबारक कौम है जिसका राजा परमेश्वर है। लेकिन इजराइलियों ने ऐसा करके परमेश्वर को नाराज कर दिया। जब आप बाद में इसे पढ़ेंगे, परमेश्वर ने देखिए कहा है शमूएल को कि शमूएल, इन्होंने मुझे तुच्छ जाना, कि इनको यानी मेरी जो है राज मेरा इनको पसंद नहीं आ रहा, इन्हें मनुष्य का राज चाहिए। परमेश्वर कहता है जाके इनको बता भी दे कि अगर तुम मनुष्य राजा चुनोगे तो तुम पर ये मुश्किलें, ये मुसीबतें आएंगी। अब जाके नबी उनको बता देता है कि यहोवा यूं फरमाता है कि अगर तुमने परमेश्वर को छोड़कर दुनियावी राजा चुना तो तुम पर ये मुश्किलें, मुसीबतें आएंगी। लेकिन उसके बाद विश्वासियों को, ईमानदारों को ये बात समझ के परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद भी इजरायली जो है इस बात पे अड़े रहे कि कोई बात नहीं, हमें परमेश्वर राजा दे दे, बाकी हम संभाल लेंगे। यानी हमें परमेश्वर ये आशीष, ये चीज़ बरकत दे दे, बाकी हम संभाल लेंगे, चाहे वो हमारे लिए गलत मुसीबत लेके आए, मुश्किल लेके आए, लेकिन हमें ये चीज़ दे दे। अब देखिए परमेश्वर ने यहाँ प्रार्थना उनकी एक तरह से सुन ली है। अब हम जब गलत चीज़ें मांगते हैं कई बार, तो हमें लगता है कि लोग हमें ज़बरदस्ती, हमने रोज़ा रखा, हमने 1 महीने रोज़ा रखा, परमेश्वर से ये चीज़ ले ली, और कई बार मिल भी जाती है, लेकिन आप देखें उसमें आशीष नहीं होती, उसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं होती। और परमेश्वर ने उसके बाद, परमेश्वर ये नहीं कि परमेश्वर ने इनसे अपना हाथ उठा लिया या परमेश्वर इनसे दूर हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसा देखिए, जैसे भी ये लोग थे तो अब्राहम की संतान थे, और परमेश्वर हमारा दया की खान है, परमेश्वर हमारा दया से भरा हुआ परमेश्वर है, और उसके घर में दया है, वो अपने बच्चों के पापों को माफ़ करता है। लेकिन एक ईमानदार का भी फर्ज बन जाता है कि वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चले, बल्कि अपनी ख्वाहिशें ना आगे रखे, परमेश्वर की मर्जी आगे रखे। हमें इस संसार में, हमें भी संसारिक चीज़ों की ज़रूरत है, हमें भी सर पे छत चाहिए, एक अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, हमें भी पैसे चाहिए। अब बाइबल में पैसे को नहीं गलत बोला गया, बाइबल बताती है धन का लोभ
धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। यानी धन धन नहीं बोला, धन का लोभ सारी बुराइयों का जड़। जितनी भी बुराइयां हैं, सबसे की बुराई जो आएगी वो धन के लालच से आएगी। धन धन नहीं, धन नहीं, धन का लोभ। अब इजराइलियों ने ये गलतियां की, देखिए राजाओं ने भी गलतियां की है। परमेश्वर का इतना अनुग्रह पाके हमने कल 2-4 दिनों से सब डिटेल में पढ़ रहे हैं कि देखिए परमेश्वर ने दाऊद को भी एक चरवाहे से राजा बनाया। दाऊद ने भी 2 बार परमेश्वर को हर्ट किया। सुलेमान को हमने देखा राजा बनाया, परमेश्वर ने विजडम दी। आखिरी दिनों में सुलेमान भी देखिए कितने बड़े पापों में पड़ गया, परमेश्वर को हर्ट कर गया। अब जब नया नियम आता है, अब हम जो लोग हैं अब नए नियम के हैं। नए नियम में देखिए आप 1 कुरिन्थियों 10 में आप जाएं। अब यहाँ पर देखिए हमारा मामला शुरू है। यहाँ पर अब हमारा मामला शुरू है। 1 कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय देखें आप। यहाँ पर अन्य जातियों का सिलसिला शुरू हो चुका है नए नियम से। 1 कुरिन्थियों 10 में आप शुरू से पढ़ें, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो। तो प्रभु परमेश्वर ने सबसे पहले कहाँ से शुरू की बात कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। अज्ञात का मतलब अनजान रहो, कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। कौन सी बात? परमेश्वर क्या चाहता हमें पता होना चाहिए। परमेश्वर सबसे पहले यही चाहता है कि हर एक उसके ईमानदार को उसका वचन पता होना चाहिए, वचन पता होना चाहिए। और जो गलतियां बीते समय में इजराइलियों ने की, वो गलतियां हम ना दोहराएं। अब देखिए परमेश्वर ने 1 कुरिन्थियों 10:1 में लिखा, अब परमेश्वर ने नए नियम में देखिए वही बात ली। देखिए परमेश्वर ने इजराइलियों के गलतियों की, जो इजराइलियों ने बार बार परमेश्वर को हर्ट किया। यानी आप भाई बहनों पर देखिए सबसे बड़ा अनुग्रह ये हुआ कि हम अन्य जातियों के थे। हम तो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे और हमारे काम भी अच्छे नहीं थे, फिर भी उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमें चुना। और देखिए बाइबल हमारे लिए इतनी अनजान पवित्र शास्त्र था, लेकिन आज देखिए उसी परमेश्वर ने हम सबको पवित्र शास्त्र का ज्ञाता बना दिया। ये अनुग्रह नहीं, उसी जो हम नरक के भागी थे, उसी परमेश्वर ने हमें पकड़ के स्वर्ग का वासी बनाया। उसी परमेश्वर ने, जो हम सबसे बड़े पापी थे, इसी परमेश्वर ने हमें देखिए पापी से संत बना दिया। तो इतना अनुग्रह जब हम पर हुआ है भाई और बहनों, अब देखिए हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है। क्या अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हमारी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई। उनके उस हर्ट को, उनके उन गुनाहों को परमेश्वर ने यहाँ नए नियम में जो पत्रियां लिखवाई प्रभु परमेश्वर ने संत पौलुस से, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, उसमें परमेश्वर ने उन बातों को लिया। अब कैसे लिया है परमेश्वर ने? देखें 1 कुरिन्थियों 10, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञान रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। देखा, कोई भी छूटा नहीं। सब के सब इजरायली जो थे, सब के सब बादल के नीचे थे, उसी परमेश्वर के छत के नीचे और महान परमेश्वर के हाथ के नीचे। बादल का मतलब एक ही परमेश्वर के हाथ के नीचे थे। सब के सब समुद्र के बीच से पार होके गए। देखिए सब,
सब समुद्र में से निकल के गए हैं। सब ने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। देखिए, आमीन, हालेलुया। सबका परमेश्वर एक ही, सबके सर पर एक ही परमेश्वर का हाथ। सब ने एक साथ समुद्र पार किया। सब ने परमेश्वर का बड़ा दया वाला हाथ देखा। सब ने आत्मिक भोजन भी इकट्ठे किया। सब कुछ इकट्ठे कर रहे हैं, सारे प्रभु का अनुग्रह इकट्ठे ले रहे हैं, सारे खाना इकट्ठे खा रहे हैं। जो भी प्रभु उन पर अनुग्रह कर रहा था वो छांट के नहीं कर रहा था कि मैंने इनके साथ करना, इनके साथ नहीं करना, मूसा के साथ, मूसा को अनुग्रह देना, बाकियों को नहीं देना। नहीं, प्रभु पक्षपात नहीं कर रहा था। प्रभु सबके साथ एक जैसा बर्ताव कर रहा था। अगर चट्टान से पानी निकल रहा था तो सबके लिए निकला। अगर आसमां से मन्ना गिरा तो सबके लिए गिरा। अगर प्रभु परमेश्वर ने बटेरे भेजी, सबके लिए भेजी। तो प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह जो था वो सबके लिए था। परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया कि तू इस धर्म का है, तू इस जात का है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं मन्ना बांटा, ऐसे नहीं पानी बांटा परमेश्वर ने कि इसको देना है, उसको नहीं देना है। ये प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह देखिए आप। और देखिए, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। सब एक ही आत्मिक चट्टान से पी रहे थे और जो साथ साथ चलती थी। अब साथ साथ कौन सी चट्टान चल रही थी? जिस चट्टान से पानी पिया था वो चट्टान तो वहीं थी, पड़ी हुई थी। पानी पीने के बाद क्या सारे सफर में वो चट्टान चली? देखो, ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। कौन चल रहा था चट्टान के रूप में उनके साथ साथ? अब इसको हमें आत्मिक समझ से समझना पड़ेगा। ये जो लिखा है कि वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी, ये चट्टान और कोई नहीं है, ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। इसी पर तो मूसा ने छड़ी मार दी थी, जो प्रभु ने कहा था सिर्फ छड़ी चट्टान की ओर करना, वो पानी देगी। तो मूसा ने भी उसमें जब इरिटेट हो रखा था सबसे, तो मूसा इस चट्टान को छड़ी मार बैठा। तो प्रभु वहां पर मूसा से क्या हो गया था? क्रोधी। प्रभु वहां नाराज हो गया मूसा से। वही मूसा जिसने इज़राइल में जाना था, इज़राइल में जाना था। अब देखें, मूसा नहीं जा पाया, मूसा नहीं जा पाया इज़राइल, इस गलती के कारण। देखा, एक गलती मूसा को इज़राइल नहीं दाखिल करवा पाई। जो एक में गलत है वो सारे कलाम में गलत है। अजीज़ों, यहाँ मूसा ने चढ़ी, परमेश्वर क्यों क्रोधी हुआ? हम कहेंगे चट्टान पर छड़ी मारने की इतनी बड़ी सजा। भाई, पुलुस के ऊपर कलाम वो खुला, कहता वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था उस वक्त। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये साथ साथ चलती थी। परंतु अब देखिए आगे देखिए आप, आगे क्या लिखा है? वो चट्टान मसीह था। देखा, वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह था, जिस पर मूसा ने छड़ी करनी थी लेकिन मार दी छड़ी। आप देखिए, परमेश्वर के कलाम में एक भी बिंदु बढ़ा नहीं सकते और एक भी बिंदु घटा नहीं सकते। परमेश्वर का कलाम जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसे ही पूरा करना होता है। आप इसी से आप देख लें कि मूसा को प्रभु ने क्या हुक्म दिया था, मूसा ने क्या कर दिया। इसी तरह आज भी भाई बहनों, चाहे कोई कहे मैं एक परमेश्वर को मानता हूँ, मैंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, मैं भाई ब्रानम को नबी मानता हूँ, सब ने देखिए एक, इन्होंने भी सब ने एक ही परमेश्वर के तालीम ली, एक ही बादल के नीचे थे, एक ही पानी पी रहे थे, एक ही नबी के पीछे चल रहे थे। लेकिन देखिए 5 आयत में, देखिए 5 आयत में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न था। यहाँ आप देखा, आपने पढ़ा, आपने परमेश्वर का वचन, सब कुछ एक ही कर रहे हैं, एक ही सारा कुछ इकट्ठा ही कर रहे हैं, एक ही परमेश्वर के साथ चल रहे हैं,
एक ही खाना खा रहे हैं, एक ही चट्टान से पी रहे हैं, सब कुछ देखने में सब एक लग रहे हैं, दिखने में सारे मसीह लग रहे हैं, दिखने में सारे मैसेज बिलीवर लग रहे हैं, लेकिन लेकिन 5 आयत में परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना था, बहुतों से प्रसन्न ना था, और दिखने में सब एक ही लग रहे थे, लेकिन परमेश्वर दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। अब जिनसे प्रसन्न नहीं था, जिनसे प्रसन्न नहीं था परमेश्वर, क्या वो उस वादे की धरती पर पहुंच पाए? क्या वो उस इज़राइल देश में पहुंच पाए? आप आगे पढ़े, आगे लिखा है इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। जो भी भाई बहन, चाहे वो कहे कि हम एक खुदा को मानते हैं, हमने तो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिया, हम अंत समय के लोग हैं, भाई इब्राहिम को नबी मानते हैं, लेकिन अगर वो पूरे मन से परमेश्वर के साथ नहीं चले, पूरे हृदय से परमेश्वर के साथ नहीं चले, अगर उन्होंने कुछ भी परमेश्वर को हट किया, परमेश्वर का कलाम कहीं भी तोड़ा, तो आप देख लें, चाहे सब एक ही प्रभु को मानने वाले लोग हैं, सबके एक ही लग रहे हैं, लेकिन प्रभु जानता है कि किसका हृदय अभी भी प्रभु के साथ ठीक नहीं है। अब देखिए, 5 मूर्ख कुंवारियां और 5 समझदार कुंवारियां भी यहाँ पर थी। जब वो निकले हैं तो इनके बीच में भी समझदार और मूर्ख कुंवारियां थी। सबके सब एक ही परमेश्वर के लोग लग रहे हैं। आज भी देखिए, सबके सब एक ही परमेश्वर के लोग लग रहे हैं। और कल हमने जाना था कि हम भी उस गुलामी से निकले जिस तरह ये निकले हैं। नए नियम में हमें परमेश्वर ने इन गलत शिक्षाओं की गुलामी से बाहर निकाला। हमें लगा कि हमने अब एक खुदा पा लिया है, सच्चा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का पा लिया है, और आज के समय का नबी जान लिया है कि हम तो अब मुक्ति पा गए हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अच्छी बात है विश्वास रखना, लेकिन मेरे भाइयों, ये जो वचन से मिलाने की, प्रभु के साथ चलने की जो प्रैक्टिस है, ये रोज की है, हर रोज की है, एक दिन का कार्य नहीं है। ये रोज अपने को जांचना है कि हर रोज क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें हम तो एक ही परमेश्वर के लोग हैं, हम तो अंत समय के पैगाम के लोग हैं। अब 6 आयत में देखे, 6 आयत में ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है। अब आप समझे होंगे सारी तस्वीर को कि परमेश्वर ने उन गलतियों को, पापों को जो उनसे की हुई थी इजराइलियों से, परमेश्वर ने नए नियम में हमारे लिए लिखवाया, और परमेश्वर ने बताया कि वहाँ पर क्या उन्होंने किया था जो मेरे को बुरा लगा। परमेश्वर ने बता दिया कि चाहे वो सब के सब एक ही बादल के नीचे थे, सब एक ही जगह से पानी पी रहे थे, सब इकट्ठी एक ही आत्मिक खाना खा रहे थे, पर फिर भी उनसे बहुतों से मैं प्रसन्न नहीं था। तो ये बातें जो प्रभु ने कही 6 आयत में हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है कि इसका रेवलेशन जो है, प्रकाशन अभी निकलना है, नए नियम में आके इसका प्रकाशन बनना है। कि इसका प्रकाशन नए नियम में है कि आप और मैं निकले हैं गुलामी से। भाई, हमारे पास भी एक ही कलाम है, एक ही बाइबल है, एक ही आत्मा है, एक ही मैसेज है, लेकिन उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती, जिम्मेदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी बड़ी होती है। यानी हमने बेफिक्र नहीं होना, ढीले नहीं पड़ना,
कि हमने ये मैसेज अपना लिया है, अब हम पक्का स्वर्ग जा रहे हैं। इस चक्कर में हम ढीले ना पड़ जाएं कि हम संगति छोड़ दें, चर्च छोड़ दें, हम ढीले पड़ जाएं, प्रार्थना छोड़ दें, हर किसी शिक्षाओं को सुनना शुरू कर दें। आगे चलते हैं। ये बातें दृष्टांत ठहरे कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। उन्होंने जैसे लालच किया था, हम भी किसी भी वस्तु का लालच ना करें। अब लालच सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, लालच सिर्फ पैसे का ही नहीं होता। हर चीज जो आपने अपने ऊपर भारी कर ली है, अपने ऊपर हैवी कर ली है, वो लालच में बदल जाती है। सिर्फ पैसा ही लालच नहीं होता। कोई भी चीज परमेश्वर से ज़्यादा समय देना, किसी भी चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत देनी, वो लालच है, वो मूर्ति पूजा है। पहला स्थान हमेशा प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। पहला स्थान जो है हमारे जीवनों में, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। अगर हमने उसके स्थान पर किसी दूसरी चीज को रख दिया है, वो लालच है। सिर्फ पैसा का लालच नहीं होता, पैसा ही लालच नहीं होता। हर चीज जिसके हम पागल हो गए, दिन रात सोचे जा रहे हैं, दीवाने हो गए हैं, मरे जा रहे हैं, हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, वो लालच हो जाती है। वो उसके पास है, मेरे को भी ये चीज़ चाहिए चाहिए, उसके पास है, मेरे को भी ये चीज़ चाहिए चाहिए। वो किस में बदल जाएगी? वो लालच में बदल जाएगी। और परमेश्वर इस पाप को पसंद नहीं करता। सिर्फ धन का ही लालच नहीं होता। हर चीज़ जो आप जिसके कारण दिन रात आप तड़फे हुए हैं, अपना शांति आनंद प्रभु वाला खो दिया है आपने, वो आपने लालच बन गया, उस चीज़ में आप लालच में आ गए हैं। तो प्रभु परमेश्वर कहता है कि किसी भी वस्तु का लालच ना करें, किसी वस्तु का लालच ना करें। इस संसार में कोई भी साथ नहीं जानी हमारे। और जहाँ तक ये जो शरीर हम संवार रहे हैं, संवारना चाहिए, लेकिन याद रखें ये भी साथ नहीं जा रहा, ये भी बदलना है। तो लिखा है कि कोई भी लालच ना करे और तुम मूर्त पूजने वाले बनो, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो। अब आप समझे, परमेश्वर सिर्फ उससे ही नहीं पाप कह रहा कि मूर्ति के आगे पूजने को ही पाप नहीं कह रहा। इसे आप ध्यान से समझे। अब इस कलाम से सिर्फ पाप वही नहीं है कि मूर्तियों की पूजा करना ही पाप है ना, वो पाप है, मूर्तियों की पूजा करना पाप है। लेकिन किसी भी वस्तु का लालच करना, किसी भी वस्तु का लालच कर लेना, वही ईमानदार विश्वासियों के लिए, जिनके ऊपर प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह किया कि कोई चीज़ की कमी नहीं रखी हमें, जिसे मुक्ति मिल गई, वो उसे किस चीज़ की कमी है। तो अगर वो विश्वासी संसारिक वस्तुओं का लालच करेगा, किसी भी चीज़ का, तो प्रभु उसे कौन सा पाप ले रहा है? क्या पढ़ा आपने? प्रभु उसे कौन सा पाप ले रहा है? किसी के घर का लालच कर लिया आपने, किसी के पहनावे का लालच कर लिया आपने। जो प्रभु ने 10 हुक्मों में से कहा हुआ है, तो किसी भी चीज़ का लालच ना करना, किसी के घर का, बाहर का, रहने का, सामान का, किसी चीज़ का लालच ना करना। प्रभु अपने लोगों से ये पाप की उम्मीद नहीं रखता। पाप सिर्फ मूर्ति पूजा ही नहीं है। अगर किसी चीज़ का लालच भी कर लिया, तो परमेश्वर ने उसे किसके बराबर पाप गिना? उसे कौन सा पाप कहा है प्रभु ने? दोबारा पढ़ लीजिए आप, दोबारा पढ़ लीजिए आप। 6 आयत पढ़े, 6 पढ़ेंगे फिर 7 समझ आएगी। 6 का 7 का आपस में रिश्ता है। अब 6 पढ़ेंगे फिर 7 समझ आएगी। पहला कुरिन्थियों 10:6 में दोबारा से पढ़ रहा हूँ। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें।
बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ठीक, अब 7 आयत में आके अब आपको समझ में आ जाएगा। और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो, यानी लालच को परमेश्वर ने क्या लिया, मूर्ति पूजक। तो अब आप समझे कि कई बार, क्योंकि हमें तो अपने लोगों को सुधारना है, बाहर वालों से नहीं। कई बार हम लोग हमें होता है कि हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी है, अब हम मूर्ति पूजा नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम संसारिक वस्तुओं का लालच कर रहे होते हैं। तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि चीनी छोड़ दी, शक्कर खा रहे हैं अब ज़्यादा। चीनी छोड़ दी हमने, लेकिन शक्कर दोगुनी खा रहे हैं हम। तो मूर्ति पूजा छोड़ दी हमने, पर लालच कर रहे हैं जो मूर्ति पूजा के बराबर पाप ले रहा है प्रभु। तो परमेश्वर ने इसे मूर्ति पूजक के बराबर बोला है। प्रभु कहता है जैसे कि उनमें से कितने बन गए। अब देखिए, उन्होंने तो एक बार ही गोल्डन काफ बनाया था, जब मूसा परमेश्वर प्रभु के पास था 40 दिन 40 रात 10 कमांडमेंट ले रहा था। तो इज़राइलियों ने नीचे एक गोल्डन काफ बनाया था, सुनहरी बछड़ा, जिसे पूजने लग गए थे। एक तो वो था इनका पाप मूर्ति पूजा वाला। अब प्रभु ने उसको तो पाप लिया, लेकिन देखिए ये जहाँ पर जो बोल रहा है कि इज़राइलियों ने पाप किया मूर्ति पूजा वाला, ये प्रभु उसको नहीं बोल रहा गोल्डन काफ वाले पाप को। जो इज़राइलियों ने रास्ते में जो संसारिक लालच किया, प्रभु उसको ले रहा है। प्रभु कह रहा है कि जैसा उनमें से कितने बन गए, मूर्ति पूजक बन गए, दुनियावी लालच करके वो क्या बन गए, मूर्ति पूजक। पोजीशन का भी लालच एक मूर्ति पूजा है। जैसे दतान और कोतान ने कहा था कि मूसा तू ज़्यादा बड़ा हो गया है, तू हम पे ज़्यादा बड़ा प्रधान है, तू अकेला धर्मी है, हम सारे धर्मी हैं यहाँ पर। देखिए परमेश्वर ने ज़मीन फाड़ दी थी, और जिन्होंने विरोध किया था मूसा का, सबके सब परमेश्वर ने वहाँ डाले थे। तो उन्होंने भी क्या लालच किया, पोजीशन का। अब हम अगर पैसे के लालच को सोचें कि छोड़ दिया हमने, मूर्ति पूजा छोड़ दी, तो हम अगर इधर आके संसारिक वस्तुओं का, और अगर हमारे बहुत सारे लोग पोजीशन के लालच में बहुत होते हैं कि पास्टर की पोजीशन है जी, प्रॉफिट की पोजीशन है। ये प्रभु देता है अपनी मर्जी से जिसे देनी होती है, और जिसे मिलती है वो तो अपने आगे ये टाइटल भी नहीं लगवाता कि वो पास्टर है या प्रॉफिट है। वो कहता मैं एक अच्छा ईमानदार विश्वासी ही बन जाऊं, बहुत है। तो प्रभु हर एक लालच को क्या ले रहा है, मूर्ति पूजा के बराबर। तो प्रभु कहता है कि न व्यभिचार बने, कि तुमने उसी दिन 23,000 मारे गए। अब देखिए इन पापों की सजा क्या है, मौत। पाप की सजा मौत। उस दिन 23,000 मारे गए। और नाम प्रभु को परखें, उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश हो। बार बार प्रभु को हर्ट करना, ये प्रभु को परखने के बराबर है। और 10 आयत में देखिए आप, जो हम थोड़े दिनों से ये कलाम हमारा प्रभु मिलता जुलता ले रहा है। 10 आयत में लिखा, और ना तुम कुड़कुड़ाओ, नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स, ये अच्छा नहीं है, हम वहाँ अच्छे थे, पहले अच्छे थे, यहाँ तो मुश्किलें हैं, वहाँ अच्छे थे, पहले वो अच्छा था। नो कंप्लेंट्स। एक सही ईमानदार ट्रू बिलीवर कभी कंप्लेंट्स नहीं करता, शिकायतें नहीं करता। नो कंप्लेंट्स। इज़राइलियों ने क्या किया था, हम मिस्र में अच्छे थे, वहाँ खाने को मिलता था, वहाँ ये मिलता था, वो मिलता था। हालांकि जीवन इतना बुरा था उनका वहाँ गुलामी में, फिर भी क्या कह रहे हैं, हम वहाँ अच्छे थे। कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स। अब देखिए
इतना चल नहीं रहे वो, जितनी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इतना इज़राइल को सामने रखकर चल नहीं रहे जितनी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। अगर हम भी सामने उस स्वर्गीय यरूशलेम को रख के कंप्लेंट्स करते रहेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। आज हमारे सामने क्या है? इस संसारिक इज़राइल नहीं हमारे सामने, वो इज़राइल जो स्वर्ग से उतरना है, हम उसके साथ उतरना है, हम उसकी ओर देख रहे हैं। विदाउट कंप्लेंट्स आप आगे बढ़ते रहें, कोई कंप्लेंट्स ना करें। लेकिन प्रभु क्या कहता है? हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर कोई ज़रूरत है आपको जीवन में आ गई है तो प्रार्थना, निवेदन, विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखी जाए, ताकि परमेश्वर उचित समय में तुम्हें बढ़ाए। फिलिपियां 4:4। तो अब आए आप, प्रभु यहाँ कहता है कि उस दिन 23,000 मर गए, नाश हो गए। 11 आयत देखें। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, क्या? ये सारी बातें जो उन पर, इजराइलियों पर पड़ी, ठीक, उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी। कि एक वो दृष्टांत है हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए, हमारे सिखाने के लिए। क्या क्या है? आगे पढ़ें, आगे पढ़ें। और वह हमारी चेतावनी के लिए। देखा, वो जो सारा कुछ हुआ वो हमारे लिए क्या है? वार्निंग। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु क्या दे रहा है? वार्निंग, चेतावनी दे रहा है। प्रभु कह रहा है वो हमारी चेतावनी के लिए, कि जो जगत के अंतिम समय में, अब हम कहाँ पर हैं? जगत के अंतिम समय में। हमारे लिए चेतावनी है, जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई है। अब 12 आयत में आप इस सारे प्रभु के वचन का प्रभु जो समझाना चाहता है, पवित्र आत्मा, अब 12 आयत में आप समझेंगे कि इस कलाम का जो कैलकुलेशन है वो क्या है 12 आयत में। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं तो जा रहा हूँ स्वर्ग, सभी अब क्या कह रहे हैं? सभी, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, रैप्चर में जा रहा हूँ। आप कैथोलिक से पूछें, रैप्चर में जा रहे हैं जी। पेंटिकोस्टल भाइयों से पूछें, रैप्चर में जा रहे हैं जी। संसार में जितनी भी संस्थाएं हैं, आप रैप्चर में जा रहे हैं, रैप्चर में सभी जा रहे हैं। और जब उन्हें पूछें आप, क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं? वो कहेंगे नहीं, मैं गैर भाषा बोलता हूँ, मैं भविष्यवाणियाँ करता हूँ। लेकिन जब आप पूछेंगे पवित्र आत्मा के फल, वो एक भी नज़र नहीं आएगा। वो एकदम से लोग गुस्सा कर जाते हैं और पवित्र आत्मा का फल एक भी नहीं नज़र आता। अब देखिए, सभी कह रहे हैं मैं स्थिर हूँ। 12 आयत में देखिए, सभी कह रहे हैं मैं स्थिर हूँ। वो कह रहे हैं भाई ब्रानम हमें तैयार कर रहा है अभी भी यीशु मसीह की आमद के लिए, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। प्रभु भोज जूस पी रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। पूरी तरह वचन में गलत हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं। और जब उनको प्रभु बताता भी है, कि प्रभु खुद बताता है अपने कलाम से कि ये पाप अपना सही कर लो, वो कहते हैं हम स्थिर हैं, हम तो एंड टाइम मैसेज के लोग हैं, हम जा रहे हैं। 20-25 तरह का मैसेज है, एंड टाइम मैसेज, और वो सभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे आके प्रभु चेतावनी दे रहा है। भाई ब्रानम के खुद के बोल है, चाहे आपका कहते एक खुदा मानते हो, चाहे बपतिस्मा आपने पवित्र आत्मा का लिया हो, चाहे आप कहते हो कि मैं समय को लेकिन फिर भी आप जमीन पे रह सकते हैं। तो प्रभु कहता है यहाँ पर कि इसलिए जो समझता है
मैं स्थिर हूँ, वो क्या रहे, चौकस रहे, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो ये हर दिन का काम है चौकस रहना, हर दिन का काम है चौकस रहना। अब मैं 2003 में जब प्रभु में आया, मैं कहा कि मैं तो अब स्थिर हूँ, लेकिन 2004 में मेरे पास मैसेज आया, मैंने कहा होश, मैं तो अब स्थिर हूँ। लेकिन 2016 में जब मेरे पास पूरा वचन खुला, तब जाके पता चला कि वो भी अभी मिलावट थी, अभी मैं मिलावट में था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से प्रभु मुझ पे कलाम खोलता गया जब तक मैं सिद्धता की ओर ना पहुंच जाऊं। पर ये एक दिन का नहीं, हर रोज का कार्य है। तो लिखा है कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, अलर्ट रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बाइबल में जो जो जब ही वो ओवर कॉन्फिडेंस हुए हैं वो गिर गए, वो जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस हुए घमंडी हो गए, वो हलीमी उन्होंने छोड़ दी और वो गिर गए। और आज बहुत बहुत हमारे बीच में भाई बहनों के साथ ये मसला है, जब हम उनको बताते हैं कि आप कलाम के साथ सही हो जाओ, वो कहते हैं नहीं हम सही ही हैं, हम तो रैप्चर में जा रहे हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, विश्वास एक अलग चीज़ है भाई बहनों, पर ओवर कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है। विश्वासी बंदा हमेशा हलीम रहता है कि प्रभु परमेश्वर मेरे पाप माफ़ कर दे, तेरे अनुग्रह से ही मैं जाऊंगा रैप्चर में, मेरे में खुद में कोई भी खासियत नहीं है, चाहे मैं सारा कलाम पर भी चलता हूँ, सारी बाइबल भी मान लूँ, तब भी प्रभु परमेश्वर मैं रैप्चर में तेरे घर में तेरे अनुग्रह से ही जाऊंगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है, फिर भी परमेश्वर तुम्हें उस हालातों में तुम्हारे साथ होता है। पर जब तुम हलीम होते हो, जब तुम परमेश्वर के पास होते हो, तो मिस्र की गुलामी से सब निकले सब है, सब एक ही परमेश्वर के नीचे, सब एक ही परमेश्वर से सब कुछ पा रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ क्वालिफाई हो गए और कुछ डिसक्वालीफाई हो गए, उसमें से कुछ क्वालिफाई हो गए और कुछ आप देखते हैं डिसक्वालीफाई हो गए। तो डिसक्वालीफाई यानी परमेश्वर के चुनाव में अगर आप हैं तो आप पास हो गए, लेकिन अगर परमेश्वर के चुनाव को आपने चुनाव में नहीं है, डिसक्वालीफाई हो गए, फिर आप पहुंच नहीं पाओगे। तो प्रभु परमेश्वर इसे क्या कहता है? प्रभु परमेश्वर इसे कहता है क्वालिफाई। तो परमेश्वर के जो हमें परमेश्वर ने सफ़र दिया, इसमें से तो कुछ क्वालिफाई हो गए, लेकिन कुछ डिसक्वालीफाई हो गए। जो भी संभले नहीं वो डिसक्वालीफाई हो गए, लेकिन जो हर रोज चौकस रहे, अलर्ट रहे, ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो लोग देखिए क्वालिफाई हो गए, वो प्रभु के घर में पहुँचे। सिर्फ जो प्रभु के साथ हलीम रहे, चौकस रहे, अलर्ट रहे, हर दिन अपने आप को कलाम के साथ जांचा कि मैं वचन से बाहर तो नहीं हूँ। जब जब प्रभु परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी, वार्निंग दिया, उसी वक्त वो हलीम होके उन्होंने अपने आप को कलाम के साथ मिलाया और वो क्वालिफाई कर गए। तो 10 में जो आप 10 में पढ़ रहे हैं, इस पहला कुरिन्थियां जो आप 10 अध्याय पढ़ रहे हैं, इस 10 से पहले जो 9 अध्याय है उसकी 27 आयत में शब्द आया है डिसक्वालीफाई। वो लोग जो प्रभु के उस अनुग्रह में पास नहीं हो पाए,
निकले सफ़र में इज़राइल की ओर जाने के लिए, प्रभु के घर जाने के लिए लोग बहुत निकले, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग डिसक्वालीफाई हो गए। तो इंग्लिश की बाइबल में लिखा है डिसक्वालीफाई। एक वो है जो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, एक वो है जो क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप इस पहले कुरिन्थियों के 9 अध्याय में जाएं, 9 अध्याय में, और 9 की आप जब 27 पढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों, तो आप यहाँ देखें, मेरे पास थोड़ी इंग्लिश की बाइबल है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। और यहाँ पर 9 की 27 में यहाँ प्रभु का वचन आया, पहला कुरिन्थियों और उसका 9 और उसका 27 आयत। तो लिखा है यहाँ पर, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ, वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके मैं अपने आप ही किसी रीति से डिसक्वालीफाई हो जाऊं। जो आपके यहाँ निकम्मा वर्ड आया है, यहाँ इंग्लिश में आया है डिसक्वालीफाई, रिजेक्ट हो जाना, प्रभु के घर से, प्रभु से रिजेक्ट हो जाना, डिसक्वालीफाई हो जाना। तो पौलुस कहता है कि मैं प्रभु के घर से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की नज़रों में कहीं डिसक्वालीफाई ना हो जाऊं। मैं जो इतनी दौड़ दौड़ता आ रहा हूँ, कहीं डिसक्वालीफाई ना हो जाऊं। एक डायरेक्ट बुलाहट पाया हुआ सेवक बता रहा है, जिसकी सीधी बुलाहट प्रभु से हुई है, और वो बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मैं प्रभु की नज़र से गिर ना जाऊं, उधार के उस रेस से फेल ना हो जाऊं, उस दौड़ में जो लगा हुआ हूँ मुक्ति की, रैप्चर की, उसमें फेल ना हो जाऊं। तो वो बता रहा है कि मैं क्या करता हूँ। वो क्या करता है, देखिए, आपकी प्रभु की नज़र में वो एक प्रभु का दास, विश्वासी, क्वालिफाई यानी बना रहे। फिर से पढ़ते हैं 9 की 27। वो कहता है मैं अपनी देह को मारता हूँ। अब क्या पौलुस डंडे से डंडा उठा के अपने आप को मारता था? देखिए, बाइबल तो सिर्फ आत्मिक कलाम है, रूह का कलाम है, और बार बार इसलिए बोला जाता है, इसे हम अपनी खुद की समझ से नहीं समझ सकते, इससे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से ही समझ सकते हैं। पौलुस कहता है मैं डिसक्वालीफाई ना हो जाऊं, कहीं प्रभु दूल्हा आए और वो ये ना कह दे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। उधर बाद में चलते हैं। वो कहता है मैं अपनी देह को मारता हूँ। क्यों मार रहा है ये देह को अपनी? क्या कह रहा है लास्ट में कि मैं प्रभु की नज़र में डिसक्वालीफाई ना हो जाऊं। कहता है मैं अपनी देह को मारता हूँ। देखा आपने, यानी बपतिस्मे के बाद काम खत्म कहाँ हो गया? हमने जी बपतिस्मा लिया हुआ है, हाँ जी जी, यीशु मसीह को मानते, हाँ जी यीशु मसीह को मानते। असी भी बपतिस्मा लिया हुआ है जी 10 साल पहले, हमने 5 साल पहले लिया था जी बपतिस्मा। उसके बाद जीवन पता ही नहीं है, बाइबल किधर है, करना क्या है पता ही नहीं, बपतिस्मा लिया है जी, क्योंकि हमने सुना है कि बपतिस्मे वाले स्वर्ग जाएंगे, चलो हमने भी ले लिया। वहाँ एक सेवक जिसकी सीधी बुलाहट हुई है, वो कहता है मैं अपनी देह को मारता हूँ, अपनी देह को मारता और कूटता हूँ। ये मारना कूटना कौन सा, डंडे वाला नहीं है, आगे पढ़े ये समझ आ जाएगा। कहता उसे वश में लाता हूँ, यानी मैं अपनी इस सोच को, इस बुद्धि को, इस संसारिक आँखों को, जो मुझे संसारिक लालच देती हैं कि वो देख यार किसी का घर कितना अच्छा,
किसी के पास गाड़ी कितनी बड़ी है, यार उनके पास तो इतना पैसा, यार उनके पास ऐसे क्या है, हम भी कम है कोई, हम भी लेंगे। संसारिक जुए में ना जुतो, इस संसारिक दौड़ में मत दौड़ो, इसमें इसका कोई मंजिल नहीं है, बर्बाद ही करेगी। तो पुलूस किस तरह कंट्रोल करता था अपनी दुनियावी सोच को, पुलूस किस तरह कंट्रोल करता था इन आँखों को, कि दुनियावी में कुछ, दुनियावी जो सुंदरता जो मेरे लिए पहले सुंदरता थी, वो बंदा कह रहा है अब मेरे लिए ये सारी संसारिक वस्तुएं कूड़ा है, करकट है। ये यही सेवक कह रहा है, कहता है संसारिक वस्तुएं ये सब मेरे लिए कूड़ा है, कूड़ा करकट है। इसने ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आज सारा संसार पागल है, सारा संसार अमीर होना चाहता है, सारा संसार करोड़पति अरबपति होना चाहता है, सारा संसार मशहूर होना चाहता है। और ये बंदा कह रहा है कि मेरी निगाह में ये सारा कूड़ा करकट है। इसने इतना बदलाव कैसे किया? इसने अपनी देह को मारा पीटा, पर वही बात है, डंडे से नहीं। इसने अपनी उस सोच को, उन दुनियावी आंखों को कंट्रोल किया, वश में लाया। इसने अपनी सोच को वश में लाया कि इस तरफ जाना ही नहीं। जैसे कलाम कहता है कि अगर तुमने औरत पर बुरी नज़र भी डाल ली तो उसके साथ तुम पाप कर चुके हो। तो इस बंदे ने क्या किया देखा? इस बंदे ने अपनी ऐसी सोच को वश में लाया कि किसी भी औरत की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखना। इस बंदे ने अपनी सोच को वश में लाया। जो अगर जाती थी पहले, उसके मारा पीटा आत्मिक तौर पर, वचन से, वचन के छड़ी से, वचन परमेश्वर की छड़ी है, वचन की छड़ी से मारा पीटा। अगर अगर उसका मन करता था दाखरस पीने का, मदिरा पीने का, तब देखिए वचन की उस छड़ी से इसने मारा अपनी सोच को। अगर आंखें दुनियावी दिखा रही है, चकाचौंध ललचा रही है मन को, तो इसने अपनी उन आंखों को भी वचन की छड़ी से मारा पीटा। और क्या लेके आया? वश में लेके आया। पर ये एक दिन का कार्य नहीं होता, ये हर रोज का कार्य होता है। तो उसको ये वश में लाता था। कहता ऐसा ना हो कि मैं किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, इजरायली कह रहे थे कि हम तो इजराइल जा रहे हैं, हम तो इजराइल पहुंच रहे हैं, हमारे सर के ऊपर देखो यहोवा है, हमारे आगे देखो आग का खंबा बन के यहोवा जा रहा है, हम तो इजराइल जा रहे हैं। देखो भूख लग रही है, थोड़ा सा कुड़कुड़ाते हैं, वो खाना भेज देता है, हम तो इजराइल जा रहे हैं। थोड़ी सी प्यास लगती है, हम थोड़ा सा कुड़कुड़ाते हैं, वो चट्टान से पानी निकाल देता है, हम तो इजराइल जा रहे हैं। और देखा रास्ते में ही बर्बाद हो गए। तो इसीलिए स्थिर जो कहता मैं स्थिर हूँ, चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए, कहीं डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। पहुंचे देखिए कौन पहुंचा? कालेब और योशु। पहुंचा कौन है? योशु और कालेब। और देखिए मूसा भी नहीं पहुंच पाया, हारून भी नहीं पहुंच पाया, ना मूसा ना हारून पहुंच पाए। परमेश्वर ने दोनों को कहा कि अब तुम इजराइल में नहीं पहुंच पाओगे, इजराइल में नहीं जा पाओगे, दोनों ही तुम। क्योंकि मूसा ने छड़ी मारी थी इजराइलियों के सामने, परमेश्वर को उसने जलाल नहीं दिया, परमेश्वर क्रोधी हो गया। और जो कुड़कुड़ा रहे थे वो तो रास्ते में ही खत्म होते रहे। अब ये योशुआ कालेब क्यों पहुंचे, इसके बारे में हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके थे। थोड़े दिन पहले हमने योशुआ कालेब का अध्याय लिया था। जब देखिए इतने लोग कुड़कुड़ा रही थी, इतनी भीड़, सिर्फ योशुआ और कालेब ने आके बोला था
कहते हैं भाइयों, हौसला मत हारो, डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ है, हम वो नगर जीत सकते हैं। परमेश्वर ने कहा अब ये दोनों बंदे ही वहाँ पहुँचेंगे। तो पहला कुरिन्थियाँ 10 जो अध्याय है, और कल जो हमने लिया था, परसों भी लिया था, कि किस तरह परमेश्वर कनेक्शन सारी चीज़ों के जोड़ रहा है, और दिन ब दिन हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारी तस्वीर साफ हो रही है। और रविवार भी हमने यही देखा था कि इजरायली जो थे, इतने बड़े मोजे चमत्कार अनुग्रह के बाद उन्हें एक बहुत अच्छे विश्वासी बनना चाहिए, और उसके बाद किसी भी मुश्किल मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन वो हर बार कुड़कुड़ा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। पिछली प्रभु पूरी करके हटता है, आगे आगे मुसीबत आ गई, फिर रोना चिल्लाना शुरू। तो प्रभु ने नए नियम में हमें क्या बोला? प्रभु ने नए नियम में कि तुम्हारे लिए ये दृष्टांत है। हमारे लिए प्रभु कहता है ये दृष्टांत है कि हम उनकी रीति पर ना चलें जो लालच में पड़ गए, मूर्ति पूजक बन गए और रास्ते में बर्बाद हो गए। और प्रभु कहता तुम भी चौकस रहो, स्थिर रहो, कहीं तुम भी कहीं इस सफ़र के रास्ते में ना रह जाओ। और अब आप मत्ती 25 भी समझ गए होंगे। अब इसी अध्याय को मत्ती 25 से आप जोड़ें, जहाँ लिखा है 10 कुंवारियाँ इंतज़ार कर रही हैं। 10 कुंवारियाँ हैं, और जितना का भी ईमान एक परमेश्वर पर है वो सभी कुंवारे हैं। जिनका ईमान 2 परमेश्वर है, 3 परमेश्वर हैं, 2 पे भी है, वो कुंवारे नहीं हैं। तो आप देखें इस संदेश के लोग सब के सब एक परमेश्वर को मान रहे हैं, एक ही बादल के नीचे हैं, सब ही एक ही आत्मिक भोजन खा रहे हैं, एक ही बाइबल से खा रहे हैं, एक ही बपतिस्मे से खा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं है। और 5 के पास तेल था, मशाले थी, और 5 के पास तेल नहीं था। तेल प्रभु का पवित्र आत्मा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये कब कहाँ होता है? जब आपने कोई भी सच्चा कलाम ठुकरा दिया, पवित्र आत्मा आपको मोहर नहीं लगाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है, वचन ही संदेश है। जब आपने सच्चा वचन ठुकरा दिया, आप मिलावट पर ईमान रख रहे हैं कि वचन नहीं हमें तैयार कर रहा, भाई ब्रानम तैयार कर रहे हैं। आपने मिलावट पर, जो कि भाई ब्रानम के जाने के बाद मिलावट हुई। भाई ब्रानम के समय तक यही था कि वचन तैयार कर रहा है, लेकिन भाई ब्रानम के जाते ही सब जगह वचन काट दिया, मैसेज काट दिया, मैसेज की लिख दिया यू, कि तू तैयार कर रहा है। ये मिलावट है। और जितने लोग इस मिलावट पर ईमान रख रहे हैं, वो समझ जाएं कि वे वही लोग हैं जो डिसक्वालीफाई हो गए, जो कह रहे हैं हम चौकस हैं, हम तो पक्का जा रहे हैं रैप्चर में क्योंकि हम इस मैसेज के लोग हैं। वो लोग जो कह रहे हैं नहीं 10 की 7 जो है वो भाई ब्रानम है, तो वो सब डिसक्वालीफाई है। जो लोग 1965 तक रुक गए, भाई ब्रानम के जाते ही वो भी रुक गए, वो डिसक्वालीफाई है, वो रास्ते में ही रुक गए। लेकिन जो चुने हुए थे वो इजराइल पहुँचे। आप और मैं 1965 से रुक नहीं गए, हम 1965 से लगातार चल रहे हैं। कब तक चलेंगे? जब तक हमारा उद्धार नहीं हो जाता, हमारा रैप्चर नहीं हो जाता, हम इस संसार को छोड़ नहीं जाते, तब तक हम इसी तरह कलाम में चलते रहेंगे। और प्रभु हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और संदेश और भी था, लेकिन फिर से मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 5:30 इधर हो गए हैं, तो आपके भी काफ़ी समय हो गया होगा। तो पहला कुरिन्थियाँ आप 10 वाला अध्याय सारा याद रखना कि पहला कुरिन्थियाँ 10 अध्याय
परमेश्वर ने जो इज़राइलियों ने पाप किया, परमेश्वर ने हमें वो बताया कि इज़राइलियों ने ये पाप किया और मुझे दुख दिया, और तुम्हारे लिए अब ये दृष्टांत है कि तुम भी चौकस रहो और अपने जो कोई ये समझे कि मैं स्थिर हूँ और बेफिक्र हो जाए, सोचे कि अब मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बपतिस्मा ले लिया है, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। उसके बाद प्रभु भी समझाने आ रहा है और हम तो कहें नहीं जी, ये तो बस ये तो हम पूरा वचन पा चुके हैं, हम सीख चुके हैं। तो समझ लीजिए वो इंसान कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि प्रभु का जो चुना हुआ बच्चा है वो हर रोज़ सीखता है। उसे पता है कि ये महान प्रकाशन इतना बड़ा है कि जितना सीखूं कम है, और जो कहता है कि मैं सीख गया हूँ तो समझ लीजिए वो डिसक्वालीफाई है। और जिस तरह भाई ने बताया कि इसी तरह हमारा एक भाई एक सेवक के पास, जो कि मेरे द्वारा ही बपतिस्मा लिया, मेरे द्वारा ही कलाम में आया, सीखा, तो हमारा एक भाई उसी के पास गया। ये चीज़ें कि भाई मैसेज जो है प्रभु का, बाइबल हमें दूसरी आमद के लिए तैयार कर रही है, हमें अब और आगे बढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए कलाम। तो उसने ये जवाब दिया, कहता यार अब सारी उम्र सीखते ही रहना है, अब कहता हमारा समय आ गया अब दूसरों को सिखाएं, अब तो कहता हम सीख गए हुए हैं। तो जब ये बात पता चली मुझे बड़ा दुख हुआ। बाइबल ये कहती है जो कहता है कि मैं चौकस हूँ, मैं स्थिर हूँ, वो कहीं गिर ना जाए। जो कहता है मैं सीख गया हूँ, तो समझ लीजिए वो कुछ भी नहीं सीखा। जो प्रभु का चुना हुआ भाई बहन है वो हर रोज़ सीखता है प्रभु से। वो कहता है मैं प्रभु परमेश्वर, मैं नहीं कहता मैं स्थिर हूँ प्रभु परमेश्वर, पर मैं चौकस हूँ कि मैं गिर ना जाऊँ। हे प्रभु मुझे संभाल, मुझे सिखा। तो प्रभु परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे, और प्रभु के अनुग्रह से हम इसी तरह चौकस रहें, अलर्ट रहें कि कहीं हम गिर ना जाएं। हम प्रभु के साथ चलते रहें जिस तरह चट्टान चलती रही, और हम प्रभु के वचन में इसी तरह बने रहें, सीखते रहें, अलर्ट रहें, होश में रहें, अपने आप को कलाम में मिलाते रहें, और ये कहें प्रभु हमें और सिखा प्रभु, हम तो भूखे हैं, प्रभु भर दे अपने वचन से, ये कुपियों को अपने पवित्र आत्मा के तेल से भर दे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु हम पर दया करे, रहम कृपा करे, घमंड हमसे दूर रहे, इसी तरह हम हलीम बने रहें प्रभु में, और पूरी तरह जलते रहें मशाले हमारी, और हम हमेशा ही प्रभु के वचन में, पवित्र आत्मा में तैयार बर तैयार हों। और अगर अगर एक भी मिलावट है तो काम खराब हो जाएगा। और जिन भाई बहनों ने परमेश्वर के इस अंत समय में आकर भी पूरा सुधार नहीं किया अपना, फिर भी मिलावटों में चले गए, रह गए, पर आप लोग जिन्होंने ये सत्य का वचन सुना और आपने सारा सत्य कबूल किया, आपने सत्य नहीं ठुकराया। इफ्सियाँ 1:13 में लिखा है कि जब तुमने इस सत्य का सुसमाचार सुना, कोई भी अंधेरा सत्य में नहीं होता, सत्य प्रभु का वचन है। जब तुमने ये सत्य का सुसमाचार सुना और उस पर विश्वास किया, तब तुम पवित्र आत्मा के मोहर लगाए गए। पवित्र आत्मा ने तुम्हें मोहर लगा दिया। यू आर सील्ड बाय होली गोस्ट। जब आपने परमेश्वर के सारे वचन को आमीन किया, और जो अब अंत समय के पैगाम के अंदर भी जो मिलावटें थी आपने उनको दूर किया, और आपने सारा का सारा सच्चा कलाम अपना लिया। 1965 से आगे भी चले आप तो कलाम के मुताबिक आप पवित्र आत्मा के मोहर लगे हुए हैं। और ये क्यों लगना ज़रूरी है? क्योंकि इसी पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन 3 रात के बाद उस शरीर को बदल दिया था, जिंदा कर दिया था।
यही पवित्र आत्मा अब आपको और मुझे रैप्चर के लिए बदलने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम, आमीन। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। और आइए हम इस आखिरी प्रार्थना करेंगे आज की इस प्रार्थना जूम सभा की, और भाई जोशुआ के साथ करते हैं हम आज की आखिरी प्रार्थना। आइए हम सर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आशीष और बरकत दे। पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, इस अच्छे मैसेज के लिए खुदावन, जो हमें ब्लेस कर रहा है मेरे खुदावन। इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी, जो हमें डेली धोता है मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीहा, आप हमें तैयार कर रहे हैं मेरे खुदावन। सचमुच पिता, आपका वचन हमें तैयार कर रहा है मेरे खुदावन। आप सच्चे हैं, आप पवित्र हैं। आपकी पवित्रताई हमें प्रभु जी शुद्ध करती है, पवित्र करती है प्रभु जी। दया करो प्रभु जी हम सभी भाई बहनों के ऊपर, खास करके प्रभु भाई जसविंदर के ऊपर आपकी दया हो और आशीष आए मेरे खुदावंद। उन्हें और भर दो मेरे खुदावंद अपने पाक और पवित्र कलाम से खुदावंद। ऐसे ही हम डेली प्रभु जी अपने पापों से तौबा करके प्रभु, जो देखने में, सोचने में और प्रभु करने में और सुनने में हो जाते हैं हमसे, प्रभु ये पाक और पवित्र कलाम ही हमें धो देता है, जो हमें क्षमा करता है प्रभु जी। आपका अनुग्रह है प्रभु जी, आपकी दया है प्रभु जी। प्रभु हमें बढ़ाना मेरे खुदावन, प्रभु यीशु मसीहा अपने उस अनुग्रह में बढ़ाना मेरे खुदावन। हम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं मेरे खुदावन। प्रभु हम तो निकम्मे थे मेरे खुदावन, हम बाइबल पढ़ते थे मेरे खुदावन, लेकिन हमें समझ नहीं आती थी प्रभु जी। आपकी दया हुई है, आपकी कृपा हुई है मेरे खुदावन, कि अब हमें आपका कलाम समझ आने लग गया है मेरे खुदावन। हम समझने लग गए हैं मेरे खुदावन, आपकी दया से हम समझ रहे हैं मेरे खुदावन। प्रभु जी आपका आना बिल्कुल नजदीक है, बहुत नजदीक है मेरे खुदावंद। आप दरवाजे पर है प्रभु जी। प्रभु हमें हिम्मत और बल दे मेरे खुदावन, कि हम अपने आप को तैयार कर पाए खुदावन, अपने आप को शुद्ध कर पाए मेरे खुदावन, कि आप जब आए तो हम आपके सामने खड़े हो जाएं और उस तेज को सह सके मेरे खुदावन, जो आप में से निकलता है मेरे खुदा। बख्श दे प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ कर प्रभु, हमें तैयारी का मसा दे मेरे खुदावन। बख्श दे प्रभु, दया करो, अपनी दया से हमें तैयार करो, अपने अनुग्रह से। हमारे काम प्रभु जी इतने बढ़िया नहीं है मेरे खुदावन, हमारे काम इतने अच्छे नहीं है, लेकिन प्रभु आपकी दया है मेरे खुदावन, कि हम प्रभु जी आपके अनुग्रह से बचाए गए हैं। प्रभु जी आपने हमें चुना है मेरे खुदावन, आपने हमें इकट्ठा किया है मेरे खुदावन। मेरे खुदावन इस प्रभु जी सभी आशीषों के लिए, सभी बरकतों के लिए प्रभु जी आपसे हम मांगते हैं, आपके स्वर्गीय नाम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया, जो इस प्रभु जी इस मैसेज में हम इकट्ठे हुए हैं, जो हमारा एक विश्वास है, एक हमारा खुदा तू खुद है मेरे खुदावन, हमारा एक ईमान है प्रभु। हम ऐसे ही हम एक दूसरे को प्यार करने वाले, एक प्यार में प्रभु जी इकट्ठे होकर, एक विश्वास में इकट्ठे होकर प्रभु हम आपसे मिलने के लिए प्रभु एक ही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रभु, जो आपने हमें अनुग्रह से दिया है प्रभु, आशीष और बरकत पाले मेरे खुदा। बख्श दे प्रभु, आप सच्चे हैं, आप पवित्र हैं, पवित्र है आपका नाम, वो स्वर्गीय नाम। मांगते हैं आपके स्वर्गीय नाम। आमीन 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 आमीन। सो प्रभु आशीष और बरकत दे ਭਾਈ ਜੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ